منبر نور پہ جلوہ بار معزز و مکرم علماء اکرام و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آغاز گفتگو سے پیشتر اصل کائنات خلاصہ موجودات، جس نے انسانوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی میں لا کر کھڑا کر دیا، آئیے اسی سرور سینہ باغ مدینہ جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ حضرات کافی دیر سے یہاں پہ شرکت کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر علم و فضل کے جبل شامل استاد محترم حضرت اللہ مفتی حسن رضا نوری صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، اور آپ کئی حضرات سے گفتگو بھی سماعت کر چکے ہیں۔ ادارے شریعہ کے معزز طلبہ کرام نے بھی اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھی اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام طالبان علوم النبیہ کو علم و عمل کی دنیا میں بلندی عطا فرمائے۔ میری تقریر کا موضوع ہے اعلیٰ حضرت مرجع علماء عرب۔ یوں تو اس دنیا رنگ و بو میں ہزاروں بلکہ انگن شخصیتوں نے جنم لیا ہے، مگر انہی میں سے کچھ ایسی شخصیتیں منصہ شہود پہ جلوہ گر ہوئیں جو اپنی عظیم خوبیوں اور انگن کمالات و خصوصیات اور متنوع امتیازات کے باعث آفاقی شہرت کی حامل ہوئی۔ انہی عظیم شخصیتوں میں سے ایک عظیم نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ آپ کے تعلق سے آپ نے بہت کچھ سماعت کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی 30 سال جب عمر ہوئی تو آپ اپنے والدین کے ساتھ حج کے لیے مکہ شریف گئے۔ آج کے وقت ہم جہاز سے سفر کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں لوگ پانی والے جہاز سے سفر کرتے تھے، کشتی سے سفر کرتے تھے۔ جس جہاز پر آپ سوار تھے، اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ جہاز اس دریا میں موجود ہے، مخالف ہوا 3 دن لگاتار چل رہی ہے، سارے لوگ حیران و پریشان ہیں۔ ایسے عالم میں آپ کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، امی کے پاس آ کر، امی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ پریشان نہ ہوں، ہم میں سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، جہاز نہیں ڈوبے گا، اور آپ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لوگ حیران و پریشان ہیں، کفن تک پہن چکے ہیں، آواز لگانے والے نے آواز لگا دی ہے، اب ہمیں بچنا بہت مشکل ہے۔ لیکن کچھ ہی لمحہ کے بعد جو مخالف ہوا چل رہی تھی، ہوا درست ہو جاتی ہے، پھر وہ کشتی بہتر انداز سے چلنے لگتی ہے۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے قسم کھا کر کہا کہ ہم میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، جہاز نہیں ڈوبے گا، آخر ماجرا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عشق اور ایمان دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، امی جان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھ چکا ہوں کہ جو شخص دعا پڑھ کر کشتی پہ سوار ہوگا تو وہ صحیح سالم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اور میں جب کشتی پہ سوار ہوا تھا تو دعا پڑھ کے سوار ہوا تھا، مجھے یقین تھا کہ اللہ کے حبیب کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے اور ہم صحیح سالم پہنچ جائیں۔ آخر کار آپ واپس ہوئے، حج کر کے آئے، پھر طبیعت مچلی، حضور حامد رضا خان علیہ اور آپ کے چھوٹے صاحبزادے کے ذریعے لوگ پھر مکہ کے لیے رواں ہو گئے۔ آپ نے خود چھوڑا ان سارے رشتہ داروں کو، احباب کو، لیکن جب گھر آئے کئی سالوں کے بعد یہ بات آئی، ماں نے عہد کر لیا، بیٹا احمد رضا اب آئندہ تمہیں میں اس سفر پہ جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! اس لیے ماں نے تڑپتے ہوئے حالات کو دیکھا ہے، بے چینی کو دیکھا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے اپنے صاحبزادوں کو اور دیگر رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، پھر بے چین ہوئے، اضطراب کی کیفیت طاری ہوئی۔
आला हजरत फरमाते हैं जानो दिल होशो खिरत, इधर देखिए, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामा गया। आला हजरत बेचैन हुए, देखा कि अगर अम्मी से इजाजत देंगे तो अम्मी इजाजत नहीं देंगी। आखिरकार सब तैयार है, बेचैनी है। आपने अपने जो आपके खादिम थे उनसे कहा कि टिकट का इंतज़ाम किया जाए। टिकट का इंतज़ाम हो गया और आप अम्मी के कदम के करीब जाते हैं, अम्मी के कदम को चूमते हैं और इजाज़त तलब करते हैं। तो माँ ने कहा ठीक है जाओ, यूं ही कह दिया जाओ। आप जैसे ही इजाज़त मिली आप वहाँ से निकल गए, इसलिए कि नफल हज के लिए माँ की इजाज़त के बगैर जाने की इजाज़त नहीं होती है। आखिरकार जब आला हजरत चले गए, और बहुत तफसीली गुफ्तगू इसमें जो असल मौजू उसकी तरफ मैं लौटना चाहता हूँ। आला हजरत अलैहिर्रहमा मक्का की सरजमीन पर पहुँच गए हैं। आला हजरत, ये दूसरा हज है आला हजरत का। आप ज़रा सोचें कि अचानक आला हजरत तैयार हुए और अचानक वहाँ पहुँच गए। आखिर इसमें हिकमत क्या है? उसी ज़माने में हिंदुस्तान की सरजमी से कुछ ऐसे बदबख्त लोग पहुँचे हुए थे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैब पर एतराज़ कर रहे थे। आला हजरत अलैहिर्रहमा किताब दोस्त थे। आप लाइब्रेरी में चले जाते हैं और मुहाफिज़े कुतुब हरम हजरत अल्लामा सैयद इस्माइल साहब किबला वहाँ मौजूद थे और आपके साहबजादे हजरत अल्लामा मुफ्ती हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खां अलैहिर्रहमा भी मौजूद थे। गुफ्तगू चली, गुफ्तगू के दरमियान में उसी में किसी ने पूछा कि क्या क़ब्ले ज़वाल सही है? तो लोगों में उसी में से किसी ने कहा कि ये जवाज़ है, जायज़ है। लेकिन हुज़ूर हामिद रज़ा खां अलैहिर्रहमा आला हज़रत से इस्तिफ़सार करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि खिलाफ मज़हब है। अल्लामा इस्माइल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं मैंने किसी किताब में पढ़ा है कि ये जवाज़ है और अलैहिल फतवा कहा गया है। आला हज़रत फरमाते हैं, सुनिए, आला हज़रत फरमाते हैं कि नहीं, अलैहिल फतवा तो किसी सूरत में हो ही नहीं सकता। जवाज़ की रिवायत आ सकती है लेकिन ये लफ्ज़ नहीं आ सकता। वो लाइब्रेरियन थे, आप गए, किताब निकाला और जब किताब निकाल के वो वर्क को देखना शुरू किया तो वो इबारत नज़र नहीं आई। हज़रत इस्माइल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम जो आपके बड़े साहबजादे हैं, आप अपना मुंह उनके कान के करीब ले जाते हैं और फरमाते हैं कि ये कौन साहब है? ना आला हजरत उनको पहचान रहे हैं, ना ये आला हजरत के नाम से वाकिफ है, लेकिन वो पहले से आला हजरत के नाम से तो वाकिफ है, चेहरे से वाकिफ नहीं थे। जैसे ही हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया इन्हें इमाम अहमद रज़ा खां कहा जाता है, सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत इस्माइल अलैहिर्रहमा ने सुना, अपनी जगह से उठे, आला हजरत की पेशानी को चुमा और आला हजरत की पेशानी को चूमकर आपको गले के करीब कर लिया, सुभान अल्लाह। आप मचल गए, कहा यही अहमद रज़ा है, इसी ने रद्दे नदवा के ताल्लुक से किताबें लिखी हैं, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि मैंने रद्दे नदवा पे किताब लिखी जिस पर अरब के उलमा ने तकरीर से उसको जीनत बख्शी और बड़े बड़े अलक़ाबात से मुझे नवाजा। और जैसे हज़रत इस्माइल अलैहिर्रहमा को ये बात मालूम हुई कि ये वही अहमद रज़ा है जिनकी वो किताब है, वो खुशी से मचल गए, सुभान अल्लाह। और फिर जब आप वहाँ से गए तो हज़रत अबू सालेह मक्की जो काज़ी मक्का थे, सुभान अल्लाह, आपसे मुलाकात हुई, इल्म गैब में गुफ्तगू हो रही थी, आपको इजाज़त मिली कि आप गुफ्तगू कीजिए। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने तकरीबन 2 घंटा इल्म गैब पर गुफ्तगू फरमाई, सुभान अल्लाह। 2 घंटा गुफ्तगू फरमाई, कुरान और अहादीस और सल्फ़े सालिहीन के अक़वाल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब साबित फरमाया। जैसे ही आपकी गुफ्तगू हुई, हज़रत सालेह कमाल जो काजी मक्का थे उछल पड़े, सीने से लगाया और आप एक अलमारी के करीब गए, एक कागज निकाला और कहा कि आपसे बेहतर इल्म गैब पर कौन जवाब लिखेगा, सुभान अल्लाह। लिहाजा मैं मुतमन्नी हूँ कि आप इस सवाल का जवाब मुकम्मल फरमा दीजिए, सुभान अल्लाह। अरब के उलमा हैं और ये अजब के आलिम दीन है, लेकिन अरब के उलमा भी इमाम अहमद रज़ा की तरफ रुजू कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने फरमाया कि ठीक है, लाइए कागज़ कलम। तो हज़रत अबू सालेह फरमाते हैं कि इतना जल्दी भी नहीं है, बेहतर अंदाज से आपको लिखना है। आप फरमाते हैं कि हमारे पास वक्त ही कहाँ, 3 दिन बाकी है। अल्लाह अकबर।
आखिरकार आपको कागज कलम दे दिया जाता है, आप लिखना शुरू करते हैं, लिख रहे हैं। ये बात आम हो गई है कि बरेली हिंदुस्तान की सरजमी से एक शख्स आया है जो इल्मे गैब पर जवाब लिख रहा है, सुभान अल्लाह। उसी दरमियान में एक अजीम नाम हजरत शेखुल खुतबा कबीरुल उलमा मौलाना शेख अबुल खैर साहब किबला, जिनकी उम्र 70 साल की थी, बहुत बड़े आलिम थे, मक्का की सरजमी पर बहुत बड़े आलिम थे। आपको जब मालूम हुआ कि इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ली बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान जो है इल्म गैब पर किताब लिख रहे हैं, आपने उनको बुलाया। इसलिए मैं माजूर हूँ, चल नहीं सकता हूँ, आप आए। आला हजरत आए, आला हजरत ने पढ़कर सुनाया, आपकी तबीयत बहुत खुश हुई, आपकी तबीयत बहुत खुश हुई। और आपने फरमाया कि उलूम खमसा का जिक्र आपने नहीं किया। आला हजरत ने फरमाया कि साइल ने सवाल उलूम खमसा के ताल्लुक से नहीं किया था, इसलिए मैंने सवाल का जवाब नहीं लिखा। आप फरमाते हैं हमारी ख्वाहिश है कि आप उलूम खमसा पे भी रोशनी डालें। आला हजरत ने रोशनी डाली और वो अबुल खैर जो बहुत बड़े आलिम थे, 70 साल उस वक्त उनकी उम्र थी, उन्होंने कहा अना उक़ब्बिलु अर्जुलकुम अना उक़ब्बिलु लिआनकुम, कि मैं आपके कदम को बोसा देता हूँ और आपके जूतों को बोसा देता हूँ। सुभान अल्लाह। आप जरा सोचे कितने बड़े आलिम मक्का के, और वो फरमा रहे हैं मैं आपके कदम को बोसा दूं, सुभान अल्लाह, आपके जूतों को बोसा दूं। ये अजमत किसी और को नहीं मिली है। अगर ये अजमत और शान अगर किसी को मिल रही है तो इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ली बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान को मिल रही है। और एक बहुत बड़े आलिम अब्दुल हई नाम के, आप किसी को भेजते हैं कि मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे मिलने के लिए। तकरीबन आपकी 40 किताबें जो मिस्र से छप चुकी थी, इतने बड़े आलिम। आला हज़रत फरमाते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, तीसरा दिन है, इल्म गैब पर बाकी चीज़ें लिखनी है। आप फरमाते हैं कि मुझे मदीना शरीफ जाना है, ज़ुहर की नमाज के बाद अगर इजाज़त मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। अब ज़रा सोचिए, मक्का के उलमा आला हज़रत से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, सुभान अल्लाह। कैसी ज़ात है आला हज़रत की। जब आला हज़रत ने सुना तो कहा ठीक है, इजाज़त है। आप हज़रत शेख अब्दुल सैयद अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह आप आए, आला हज़रत के करीब आए और आपने हदीस की सनद हासिल की, सुभान अल्लाह। आपने खिलाफत हासिल की, आपने सनद हदीस हासिल की। आप जरा सोचें कि हिंदुस्तान की सरजमी पर अल्लाह ने कैसे आलिम दीन को पैदा किया है कि मक्का के आलिम उनसे खिलाफत को इजाज़त ले रहे हैं, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात है। और यहीं तक नहीं, आला हज़रत फरमाते हैं कि हज़रत सैयद शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सालेह कमाल अलैहि रहमा और भी इनके अलावा जो थे, जो अच्छे उलमा और उन उलमा में से थे जो अपनी जमात अलग किया करते थे, फरमाते हैं कि अक्सर मुझे इमामत के मुसल्ले पे फायज कर दिया करते थे, सुभान अल्लाह। आप नमाज पढ़ाइए। और यहीं तक नहीं, बल्कि आला हज़रत की तबीयत ख़राब हो गई, काफ़ी बुखार आ गया और गर्मी की वजह से परेशानी लायक हो रही थी। हज़रत अबू सालेह कमाल फरमाते हैं हुज़ूर, ताइफ में मेरा एक पुराना मकान है, अगर आप इजाज़त दें तो आपको मैं वहीं लेके चलूँ। आला हज़रत फरमाते नहीं, अगर यहाँ से सफ़र होगा तो ये सफ़र मदीना मुनव्वरा के लिए होगा, सुभान अल्लाह, मैं ताइफ नहीं जाऊँगा। तो हज़रत अबू सालेह कमाल फरमाते हैं हुज़ूर, मैं जो ये दरख्वास्त की थी सिर्फ एक वजह के लिए कि आप यहाँ पे रहते हैं, बेशुमार उलमा आते हैं, काफ़ी रात हो जाती है, तन्हाई में आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मौका नहीं मिलता है। इतने सारे मक्का के उलमा आपके पास आते हैं ताइफ के लिए, मैंने इसलिए इंतखाब किया था कि आप वहाँ तन्हा रहेंगे, फिर आपका ये फ़कीर भी वहाँ रहेगा, सुभान अल्लाह, ताकि तन्हाई में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इस्तिफ़ादा कर लेंगे, सुभान अल्लाह। और यहीं तक नहीं, हज़रत सैयद इस्माइल साहब किबला फरमाते हैं कि हुजूर, अगर आप इजाज़त दें तो आपका मैं निकाह करा दूँ, आपकी शादी यहाँ करा दूँ। इतना सुनना था। आला हज़रत फरमाते हैं कि जो मेरे साथ आई हैं क्या मैं उनको नाराज़ करूँ, इतना कहना था। हज़रत सैयद इस्माइल फरमाते हैं हुजूर, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी शादी हो जाए, फ़ायदा हमारा है कि जब आपका यहाँ निकाह हो जाएगा तो आप बार बार आइएगा, तो बार बार आपसे इस्तिफ़ादा का मौका मिल जाएगा, सुभान अल्लाह। यानी अरब के उलमा की ये ख्वाहिश है कि आला हज़रत बार बार मक्का शरीफ आए और हम उनसे इस्तिफ़ादा करें, हम उनसे इल्म हासिल करें। अल्लाह ताला ने आला हज़रत के मकाम मर्तबा बहुत बुलंद किया था। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को आला हज़रत के फैज़ान से माला माल फरमाए। वक्त की किल्लत दामनगीर है, किसी
حضرت مبلغ اسلام نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ، جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واہ واہ